I just started recording it. Okay. So let's see in the note what I have done. So what is CSS? CSS is cascading style sheet, and it is used to provide look and feel to the web page. And we can have three different way for providing the style to the web page. One is inline CSS. So here we are providing inline CSS style through the style attribute, internal CSS through the selector within the style tag which is present within the head. Okay, and here we are using different kind of selector. Within the selector we are writing properties and value, and another is external CSS, use creating a CSS file and linking this file into the pages where we need cell style. Is it clear up to this? So let's move to the next part. Hello. Yes, sir. Okay. So now what we are doing, we are going to learn about common properties. Okay. So properties, what in our previous session we have seen that in external CSS and internal CSS we are using selectors. Then we are placing curly braces. Here we are writing properties, then its respective value. Then we are also writing properties and its respective value. Then what are the selectors? The selectors are the entities through which we can able to select the HTML element, HTML tag. Okay, selector. First, let's discuss about the selector. Now, we select HTML tags. Okay, so there are several selectors in CSS. So what are they? The first selector is universal selector. Universal selector is that it is applicable to all the tags. When you are writing star and you are giving some what properties and value, so it is going to apply to all the tag. This is called universal selector. Similarly, you can have element selector. Element selector means you write the tag name. Here you write tag name, then you write the selectors, properties and value. For example, I want to provide style to all H1 tag present within the web page. Then I will use the tag name. Then I will write properties and value. Up to this clear? These two type. Hello. Yes, sir. But Yes, sir, sir. your voice is not audible. Still not audible. What do you do? Okay, you try to adjust with this. Today, Yes, sir, audible. okay. Uh, mm, Today I will Yes, sir. try Yes. to take 1 hour of session. Can I take the session tomorrow also? Tomorrow is Sunday. Yes, sir. No problem. Yes, Uh, sir.
Okay. Yes, sir. Okay. So once you ready, but means you are available, then we can plan for Sunday at 7 to 8. 1 hour I will take for tomorrow. Okay. So the more you give time, so as soon as possible we can complete the project as well as uh, most of the chapter. Okay. So here it is the element selector. Next, we can have ID selector. What is ID selector? For example, I have multiple paragraph PO. So already we have learned in HTML. These are the tags. Within a page, I can have multiple parameter. So here I have given the ID, let P1. Okay, let's write some content in within the paragraph. Let's write it as paragraph 1. Similarly, I am providing the ID. ID is a attribute. ID are the attribute associated with the particular HTML tag which is used to uniquely identifying the element. So here, if I am going to use ID selector, then how can I select? Now I can select has, then I will use the ID. So whatever style, suppose I am going to provide the style property, suppose I am going to provide the style like yellow. So what will happen? This paragraph 1 content, paragraph 1 will become yellow. Only this paragraph. Okay. If you write P that this is called element selector, then all whatever style you provide through this paragraph, it is going to apply to all the paragraph. Okay, this is element selector we have used. This is called ID selector. Okay. Similarly, another kind of selector is called class selector. What is class selector? For example, you have heading H1 tag. You have H1 tag. Let me write heading. Let you have paragraph tag. Okay. You have div tag. So you can have multiple tags or having same class name. Here, let me put it within the class name. Let's write the name of the class is C1 and let's make this into a single common class. So all these tags are associated with common class that is called C1. Then if I need to provide style to all three, um, then I can use class selector. Class selector generally used selected using the dot and class name. So here you can put your properties and methods. Everybody clear? Yes, sir. Okay, so then what I'm going to do, let me design a simple profile card. So this is the selector we are generally using. So in addition to these basic primitive selectors, you can have multi other selectors like you can have pseudo selector. Okay, you can have pseudo classes. So let me show you all these things one by one. First, let's do a case study. For example, I'm going to create a profile card, profile hyphen card dot html using html and css thing. So here what I'm going to do, I'm just created the boilerplate of the html. Now here you write profile page title, and here I'm going to provide the css using internal CSS style sheet using style tag, and here I'm going to design my profile. The profile means what? The image should be there will be a div. Let me write it. There will be a div, sorry. All right. After that, I can create one image for displaying the profile uh, photo.
After that, here let me write the name of the user. So we are going to create a user profile, right? Let me write John Doe or any other name you can put. Then what is its current designation? I'm writing developer or student, whatever. You can write like this, and we can uh, link its what LinkedIn or any profile link through the anchor. Let me write this anchor. So here, let me provide a CSS. So here I'm writing con. Let's write contact. Okay. So now this is the basic style which I have done. So let's see in the asset I have. Is there any? Yes, user image is already there. So you can use any of the image for providing the style. Okay. All right. Let's take the user one. Here the in image already in HTML we have learned that within the src you can write your path. So you just write image path user one. Okay, then to provide this the style to this image, what I am doing, I am writing a class name here, and here let me write profile hyphen img. Okay. So this is all right. And here to design this card, what I am going to do, I am going to create one class that is called card class. So this is a simple design which I have done. So let's run this one. Where is that? You just run it in live server. Okay. So as you see, know the width and height of the image is too big. That's why it is occupying the width and normal width and height. Then its name and this is all displaying. Is it clear, everybody? Hello. Yes, sir. Okay. So here it should display just like a link. So let me reduce the size of the image. So for the timing, as we know, we have width and height property, but it we should not use this property. We should provide the width and height of the image using CSS. For the timing, I'm just writing here. The let's write it is 100 pixel, and here also let's use uh, style as 100 pixel. So now you can see this is a simple card is displaying. Okay, but the style is not appropriate. But the card is looking something very rough because you have only added HTML content. Let's make it this card more beautiful. Okay, so how can you do? Now you can do using what? CSS. All right, everybody clear? Now ready? We are going to provide style to this one. So as whenever we are going to provide the style, so one of the universal style we need to provide. So here what I will do, I so normally if you look at each and every content, if you define it their border, just a minute. By default, I'm just providing their border, writing solid. So you will see all elements will display through their border. Are you getting? So your body tag having its border, div tag having its border, your image tag having its border. So this is universal style. Once you apply the universal style, this border is displaying around each and every element. Are you getting my point? Hello? Yes, sir. So here, what is happening? This is H1 tag and this is your paragraph tag. Within this, there is the default nature that is there is a gap. Okay, this gap is called margin. Again, if you see John Doe having little bit gap around its border, so this is called padding. So first of all, what I am going to do, I am going to kill this margin and padding. Then how can you write? Now here, the margin of all the elements
I am going to make it 0 pixel or 0, simple 0 we are writing. And padding means the space around its content over against the boundary. So now you can see all the margin and padding, the gap between John Doe and the developer is killed. Is it clear? तो सब एलिमेंट का मार्जिन जो पैडिंग है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये नॉर्मली हम लोग करते हैं। और एक चीज जनरली यू शुड नीड टू यूज, दैट इज कॉल्ड बॉक्स साइजिंग। फॉर द टाइमिंग यू जस्ट राइट बॉर्डर बॉक्स। इसका पर्पज क्या है मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जस्ट हैव ए लुक। तो इनिशियली ऐसे ही हम स्टाइल देंगे। उसके बाद लेट मी प्रोवाइड स्टाइल टू द बॉडी, बॉडी टैग। शो बॉडी टैग को स्टाइल देते हैं क्या कि व्हाट फॉन्ट फैमिली आई एम गोइंग टू यूज। तो देर आर डिफरेंट फॉन्ट फैमिली। जब लोग आप यहाँ पे वर्ड में काम करते हो, MS वर्ड में, मान लो कि मैं यहाँ पे वेलकम सब लिखा, वेलकम, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। तो आज पर द फॉन्ट स्टाइल अप्लाइड, तो मेरा इसका उसी हिसाब से स्टाइल हो जाता है। इसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। इज इट क्लियर? There is a Times New Roman. So this the font style is looking like this. Similarly, in CSS, you can also provide such kind of font style. So here, if you see, some default font style has been given. Are you getting my point? Hello? देखो, Yes, sir. टाइम्स न्यू रोमान इज देयर, सो मेनी, द लेट मी यूज टाइम्स न्यू रोमान। तो इसमें क्या होगा ना, आपका बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट होगा ना, ऑल विल बी अप्लाइड द टाइम्स न्यू रोमान फॉन्ट स्टाइल। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड फॉन्ट फैमिली। देन व्हाट आई नीड टू डू, the content which are displaying, let's see what changes, what once I apply the CSS, what exactly changes going on। तो यहाँ पे मैं दो सेक्शन करता हूँ। राइट साइड में चेंजेस क्या हो रहा है इमिडिएटली देखेंगे, लेफ्ट साइड में हम CSS अप्लाई करते जाएंगे। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो मैंने फॉन्ट फैमिली अप्लाई किया। इसके बाद लेट्स राइट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मतलब जो भी कंटेंट बॉडी के अंदर होगा वो जस्टिफाई करेगा कि वो सेंटर में जाके रहे। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर। सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर। देन लेट मी अप्लाई द CSS। देन हम लोग इसका मिनिमम हाइट जो करेंगे बॉडी का, VH मतलब व्यू हाइट। व्हाट इज व्यू हाइट ना, ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, जो पूरा वाइट एरिया दिख रहा है, सो दैट इज कॉल्ड व्यू। पूरा 100% मैंने बॉडी का हाइट ले लिया, 100% व्यू हाइट। ओके। देन you can provide some background color to your body। तो color we can provide, there are different way। okay, तो आप कैसे कलर प्रोवाइड करोगे, कल में डिस्कशन किया था। देर इज कलर पिकर tool you can use। so you can see there are different color picker you can use। okay, यहाँ पे हम मैटे रियल कलर पिकर भी हम ले सकते हैं। ओके, so you can see this kind of color picker you can also take। यहाँ से आप लिख सकते हो कोई भी कलर। मान लो कि मुझे ये चाहिए, तो यू कैन टेक दिस #62
00 ये कलर वेरिएंस ले सकते हो। तो लेट मी यूज दिस कलर पिकर, एनी वन कलर पिकर यू कैन टेक। सो इसको लेके हम करते हैं हमारा कलर। सो लेट्स, दिस इज द सिंपल, दिस इज द सिंपल, यू कैन चूज, यू कैन टेक दिस वन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई किए। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली कलर अफेक्टेड हियर इन माई। तो बैकग्राउंड कलर उसका कलर हो गया। इज इट क्लियर? अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हम लोग अगर चाहेंगे तो ग्रेडियंट कलर भी है यूज कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट कलर पिकर आप अगर यहाँ पे लिखोगे तो यू कैन गेट दैट, यू कैन राइट ग्रेडियंट कलर पिकर। ओके, सो CSS gradient. So gradient color picker, what it makes your page more attractive, just like this. So if you want such kind of um, then you just need this one. Are you getting my point? So if I take this background, then I just need to apply here, then you will see your background will look something different. You can see this is. So gradient is nothing. This is the combination of more than one color. Okay. You can apply the color vertically. You can apply the color horizontally. You can apply the color diagonally. So if you see, just a minute. Simple here you write background, not background color. Actually, it is considered as image. So let's see whether affecting my screen or not. Is it clear? Hello. Yes, sir. Okay, so this is the way you can apply, or uh, if I will use some manual, तो using color picker you can use। अगर मैं चाहूंगा कि नहीं मुझे दो कलर को लेके उसको देना है और राइट से लेफ्ट तक उसका मूवमेंट हुए हो, आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, राइट। एंड हियर लेट मी यूज समथिंग, मेरा एक याद है ये कलर, जस्ट ए मिनट। तो और एक कलर मैं दे रहा हूँ, 47V। तो ये दोनों कलर मिला के मुझे बैकग्राउंड ग्रेडियंट सेट करना है, तो ये माई कलर विल जस्ट लाइक दिस। ओके, सो नाउ व्हाट आई हैव डन, I have just applied the background body CSS to the body, and it is what element selector. So once it is done, then what can I do? Let me work with my card। तो यहाँ पे कार्ड का लिए मैं ऑलरेडी क्लास सिलेक्ट किया हूँ। तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड CSS जस्ट लाइक CARD। तो कार्ड के ऊपर हम अभी काम करने वाले हैं। तो जो कार्ड है, ये कार्ड का मैं विड्थ और हाइट पहले सेट करता हूँ, उसके साथ उसका बॉर्डर सेट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन विड्थ, लेट्स गिव 100 पिक्सल। ओके, इमेज का 100 पिक्सल हम दिए थे, इसको टू 150 करो। फिर हाइट लेट्स गिव 150 पिक्सल, जस्ट ए मिनट। यस, देन उसका बॉर्डर हम 1 पिक्सल करते हैं, सॉलिड करते हैं। फॉर द टाइमिंग आई एम जस्ट राइटिंग द बॉर्डर कलर इज ब्लू। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। कैन यू सी समथिंग हैपनिंग हियर? हेलो? Yes, sir. Sir. ओके, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो जॉन डो एंड डेवलपर इज ऑल आर कमिंग विद इन इट्स बॉर्डर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मार्जिन बटन दे देंगे, 15 पिक्सल। लेट्स सेव इट। सो इज देयर एनी चेंजेस हैपनिंग? नो। 15 पिक्सल जगह ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇଦବା। ओके, नो, व्हाई इट इज नॉट चेंजिंग?
दिन बटन, अच्छा, margin top, margin button, pixel, it should work. CARD. Let's write 100 pixel and this is 100 pixel. देखिए बड़ा होता 0 pixel. Just let me do little bit experiment here. Justify content, ठीक है, इसका सेंटर हुआ, font .bh लिया, बैकग्राउंड हो गया, background is ready. Then this card I need to provide style, width 100 pixel, height let's give 120 and 120. It is all right. Margin, margin तो ओके, ये सेंटर को आया थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज H1, let's write 150 height, let's give with this width 150 देते हैं, तो ठीक है। अभी समथिंग इज हैपनिंग हियर, तो मार्जिन बटन मतलब जो जॉन डो है, और हाँ दिस इज ऑल राइट, ठीक है। मार्जिन बटन हम अभी 50 भी दे रहे हैं, क्योंकि ना आफ्टर द div इफ देर इज सम टेक्स्ट, so then that should be present just after it. Just have a look. ये div के बाद अगर मैं कुछ पैराग्राफ रखूं, so now you can see that paragraph and the div having some margin. Okay, so let's 15 pixel is too less. So if you write like 25 pixel, so something has been changed. Let's write 50 pixel. So you can see there is a gap between this paragraph and the div. Are you getting my point? Hello. And the div height is small because I want to place the John Doe and developer both within this. Let's increase the div height. Div height, let's give 150. Developer is not presenting within the div. Let's write 170. So now you see everything is presenting within the div. Up to this clear, everybody? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So here, what we have done, we have provided little small style to this div. So let's provide other styles to this div. Hmm, what I am going to do, just a minute. कार्ड को विड्थ में सेट किया कितना, हाइट अभी नहीं दे रहा हूँ, तो लेट्स डिफाइन विड्थ, ठीक है। लेट्स अप्लाई अगेन, कार्ड को मैं क्या करूँगा, उसका जो टेक्स्ट है जॉन डो एंड डेवलपर, इट शुड कम टू द सेंटर। तो इसके लिए लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लेट्स सेव इट। तो देखो ये जो टेक्स्ट है
नाउ दे आर मूविंग टू द सेंटर, इज इट क्लियर? ठीक है। तो जो यहाँ पे जो इमेज है और ये है जो भी है, सेंटर को आ गया। तो अभी मुझे इन लोगों के बीच अंदर कुछ गैप रखना है। तो आई विल यूज पैडिंग। तो पैडिंग, लेट्स प्रोवाइड 20 पिक्सल और समथिंग। So now you see some padding has been generated, but its width is too small. That's why they are not occupied within this. Now it is, you can see there is John Doe and developer is able to store. Here I am removing the height and I'm also removing this border. So now you can see. So this is looking just like this. Okay. Then what I need to do, let me make this border little bit ready, means round. So how can I can write border radius, let's write 10 pixel. So you can see, uh, और div का जो टॉप है ना, उसको थोड़ा मैं मार्जिन टॉप भी करता हूँ उसका, MARGIN, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। तो टॉप क्या करेगा ना, थोड़ा ऊपर से आपको गैप दिखाएगा। जस्ट a minute, why this is not working, just a minute। यस। सो अप टू दिस क्लियर। देखो मैं क्या क्या अप्लाई किया वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ना सिंस CSS इज कम्प्लीटली न्यू फॉर यू, यू मे फाइंड आउट, तो बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे जो भी है मैं फर्स्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो कार्ड, ये जो कार्ड है ना, इसके अंदर इमेज है, H1 है, पैराग्राफ है, ये है, ये चारों चीज कैसे ऑर्गेनाइज होके रहेगा, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मैं यहाँ पे कार्ड का विड्थ दिया 300 पिक्सल। तो अभी अगर रिफ्रेश करूंगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि विड्थ तो सेट हो गया। इसका बॉर्डर नेक्स्ट डिफाइन करता हूँ, सो दैट यू कैन सी, यू कैन नो द व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। यहाँ पे उसका बॉर्डर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड में मैं क्या अप्लाई किया कि जो बॉर्डर दिखा रहा है, तो बॉर्डर थोड़ा रेडियस, उसका जो कर्नल है स्क्वायर की वजह से रेडियस हो जाए, ये अप्लाई हो गया। इतना अप टू दिस क्लियर? हेलो। नेक्स्ट क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं Yes, मार्जिन sir. ऑटो लिखूंगा। तो ये क्या होगा ना, डीप दोबारा सेंट, अभी लेफ्ट साइड में दिखा रहा है ना, वो सेंटर को चला जाएगा। सेव करो, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे इसको सेव करो। तो मैं अभी ऐसे दिखा रहा हूँ, आप सेंटर को आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्जिन थोड़ा टॉप करेंगे। क्यों? तो ऊपर से थोड़ा गैप दिखा है, तो ऊपर से थोड़ा गैप भी हो गया। ओके। फिर मैं क्या करूंगा, मार्जिन बटन, उसके नीचे जो पैराग्राफ है, उस उनके अंदर थोड़ा गैप रहे, तो पैराग्राफ के अंदर भी कुछ गैप और डिव के अंदर कोई गैप हो गया। फिर डिव के अंदर जो भी चीज है वो सेंटर में दिखाए। तो मैं सिंपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा, तो सब कुछ सेंटर को आ गया। अप टू दिस क्लियर? फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल दिया। तो यहाँ पे क्या है ना, जो भी कंटेंट है उसके अंदर वो 20 पिक्सल गैप होके दिखा रहा है। अप टू अप टू दिस क्लियर? ठीक है। तो मेरा कार्ड धीरे धीरे उसका UI बन रहा है। तो लेट्स यूज दिस। तो ऑल दिस थिंग्स आई हैव अप्लाइड टू मेक माई कार्ड मोर ब्यूटीफुल। और एक क्या चीज कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड बॉर्डर शैडो। तो तो बॉर्डर शैडो कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लेट मी शो यू दैट बॉक्स शैडो इज देयर, एंड हियर आई कैन राइट। तो शैडो इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो वी कैन सी द ट्यूटोरियल, W3 स्कूल से देख के कर सकते हैं। तो मैं पे यहाँ पे मेरा एक स्टाइल में प्रोवाइड कर रहा हूँ, RGB है, रेड ग्रीन ब्लू RGB। उसके बाद उसका ट्रांसपेरेंसी कितना रहेगा, हम अप्लाई कर सकते हैं। कैन यू सी नाउ दिस, सम स्टाइल हैज बीन अप्लाइड हियर। तो इसको अभी मैं ये बॉर्डर जो है ना, लेट मी सी, यस, दिस बॉर्डर आई एम जस्ट कमेंटिंग। तो सी से आप में कैसे कमेंट करोगे, टेम्परली इसको ऐसे कमेंट करते हैं।
तो आप देख सकते हो एक शैडो इफेक्ट कार्ड में अप्लाई हुआ कि नहीं? हेलो, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके। तो यहाँ पे अब आप लोग शैडो इफेक्ट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे तीनों लिया हूँ। टॉप में कुछ शैडो इफेक्ट नहीं दिया, इसलिए टॉप में कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे लेस में यहाँ पे 6 पिक्सल लिया, इसको अगर 16 पिक्सल कर दूंगा तो बॉटम वाला जो है ना बहुत बड़ा शैडो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर इसको 10 पिक्सल कर दिया, लेट मी राइट 10 पिक्सल, तो आपका शैडो जो होगा ना ऊपर से भी शैडो आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे यू कैन प्रोवाइड शैडो इफेक्ट टू योर कार्ड। अप टू दिस क्लियर? तो अभी कार्ड के अंदर जो इमेज है, ये तीनों को मैं स्टाइल देने जा रहा हूँ। तो इसको कैसे स्टाइल देंगे? तो सिंपल सा स्टाइल हम प्रोवाइड, यहाँ पे मैं इमेज के लिए यहाँ पे विड्थ हाइट जो यहाँ पे लिखा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस, यूज दिस। सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू प्रोवाइड थ्रू द CSS। तो यहाँ पे CSS में हम यहाँ पे ये लिखेंगे इमेज प्रोफाइल। सो वही विड्थ जो मैंने दिया था 100 पिक्सल, यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, तो HTML का एट्रीब्यूट नहीं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं CSS अप्लाई कर रहा हूँ। हाइट क्या होगा उसका? हाइट 100 पिक्सल होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं तो इमेज कैसे दिखा रहा है। 100 पिक्सल, 100 पिक्सल इज कमिंग। नाउ आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द रेडियस, बॉर्डर रेडियस जो है, द बॉर्डर रेडियस इसका ले रहा हूँ 50%, सो दैट द इमेज विल ऑटोमेटिकली बिकम ए सर्कल। सो यू कैन सी, इज इट क्लियर? ठीक है, तो और जो ये जो मार्जिन यहाँ पे है ना, तो इमेज के बाद जो इसका जो जॉन डो है वो थोड़ा गैप होके रहे, इसलिए मैं लिखूंगा मार्जिन बटन। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 15 पिक्सल लेट्स। तो जॉन डो जो है ना थोड़ा गैप होके आया। अप टू दिस क्लियर? हेलो, Yes, sir. इसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो H1 और H2 वट एवर आई हैव टेकन, लेट्स प्रोवाइड स्टाइल टू दिस। तो यहाँ पे मैं सिंपल H1 यूज करूंगा, यहाँ पे स्टाइल दूंगा। तो क्या स्टाइल दे रहा हूँ? उसका जो फॉन्ट कलर है उसको एक स्टाइल दे रहे हैं। तो लेट मी राइट फॉन्ट कलर इक्वल टू खास 333। थोड़ा मैं ब्लैक कलर दे रहा हूँ, तो ये कलर उसको अप्लाई हो गया। एंड उसका मार्जिन थोड़ा सेट कर रहा हूँ, लेट मी राइट मार्जिन। यहाँ पे हम टॉप में टॉप और बटन में 10 पिक्सल दे देंगे, लेफ्ट और राइट में 0 रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा जो स्टाइल हम किसको देंगे? पैराग्राफ, बिकॉज इन द पैराग्राफ आई हैव रिटन डेवलपर। तो पैराग्राफ का कलर क्या होगा? तो लेट मी डिफाइन, लेट मी राइट कलर। तो आई कैन प्रोवाइड एनी कलर। सो दिस इज द कलर आई जस्ट हैव प्रोवाइडेड, लेट्स सी। तो इट इज शोइंग। ठीक है, और उसका जो फॉन्ट साइज है ना, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पैराग्राफ का जो भी है, मैं अभी एक फॉन्ट साइज यहाँ पे दे रहा हूँ। तो हाउ टू अप्लाई द फॉन्ट साइज? ना देयर इज अ प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज, तो उसको लेके आप बड़ा कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 14 पिक्सल दे रहा हूँ। यू कैन सी द फॉन्ट साइज विल बिकम लिटिल बिट स्मॉलर। द इफ यू विल राइट 44, देन द स्मॉल फॉन्ट्स बिकम्स टू बिग। यहाँ पे जितना पैराग्राफ है सब में अप्लाई हो रहा है, बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं सिंपल 14 दूंगा, तो जितना भी पैराग्राफ मेरा होगा ऑल विल बी अप्लाइड विद द सेम। यू कैन सी द सेकेंड पैराग्राफ इज ऑल्सो अप्लाइड द कलर। नाउ सेम फॉन्ट साइज, इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मेरा एंकर टैग ठीक से खत्म नहीं हुआ था, इसलिए कॉन्टैक्ट दिखा नहीं रहा था। तो वाई एंकर टैग, अच्छा। So now the link is displaying, but this link, what I need to provide a proper style to this anchor so that it will look like a button. तो यहाँ पे मैं क्या क्या रहा हूँ, क्लास एक अप्लाई किया हूँ बटन, उसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं डॉट बटन। तो लेट्स अप्लाई द स्टाइल टू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नॉर्मली
तुम्हारा एंकर टैग क्या है? इनलाइन एलिमेंट है। कल लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन किए थे व्हाट इज इनलाइन एलिमेंट, व्हाट इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो एंकर टैग इनलाइन एलिमेंट है, तो इसीलिए उसको मैं पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट कन्वर्ट करता हूँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद उसका लेट मार्जिन थोड़ा ऊपर से देंगे। लेट मी प्रोवाइड द मार्जिन एज 10 पिक्सल। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। शो इसका ऊपर से डेवलपर और इन दोनों के अंदर थोड़ा गैप हुआ। ठीक है। उसके बाद पैडिंग देते हैं। पैडिंग मतलब बाउंड्री अराउंड द कंटेनर फ्रॉम द कंटेंट। तो लेट टॉप बटम लेफ्ट राइट, तो इस तरह का पैडिंग हम दिए यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड सेट करेंगे जो बटन का। लेट मी प्रोवाइड द बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड आइपन कलर, और सिंपल बैकग्राउंड लेके भी हम कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसा मैं हेक्साडेसिमल कलर दे रहा हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो नाउ दिस कलर हैज बीन अप्लाइड टू इट। ओके, तो इसका जो फॉन्ट का कलर है मैं वाइट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं सिंपल लिखूंगा यहाँ पे कलर। तो वाइट हम हेक्साडेसिमल यूज कर सकते हैं, ट्रिपल एफ। तो यू कैन सी द कॉन्टैक्ट इज डिस्प्लेइंग आज वट। एंड इसका जो बॉर्डर है, मैं बॉर्डर हटा दूंगा। बॉर्डर नॉन जब लिखेंगे तो बॉर्डर विल बी रिमूव्ड। ओके। फिर इसका बॉर्डर को थोड़ा राउंड कर देते हैं। तो टू अप्लाई फॉर दैट लेट मी राइट 5 पिक्सल। तो बॉर्डर इसका थोड़ा राउंड हो गया। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? देन जो ये अंडरलाइन दिख रहा है ना, ये अंडरलाइन को मुझे हटाना है। तो हाउ कैन आई रिमूव दिस अंडरलाइन? टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन कर देंगे, तो आप देखोगे अंडरलाइन विल रिप्लेस। इज इट क्लियर? हेलो? और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट दिखा रहा है सर। उसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए देयर इज अ एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड फॉन्ट वेट। लेट मी मेक इट बोल्ड। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। तो यू कैन सी द फॉन्ट बिकम्स लिटिल बिट बोल्ड। तो वंस आई हैव डन, तो जब मैं इसके ऊपर माउस लूंगा, इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डॉट btn, यहाँ पे एक सीडो क्लास अप्लाई करूंगा। तो HTML में वन ऑफ द सीडो क्लास इज होवर। होवर माने माउस ओवर। तो लेट मी राइट समथिंग लाइक बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, वही आसपास का कलर दे देंगे। और भी, हाँ वही सेम दे दो। तो लेट्स देखते हैं क्या होता है। तो देखो कुछ हो रहा है कि नहीं, माउस ले रहे हैं वो चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? यस सर। यस सर। तो यस अब आप अगर चाहोगे कि नहीं ये जो स्टाइल में दिया था, तो ये पिंक कलर थोड़ा मुझे नहीं लग रहा है, तो यू कैन टेक योर कलर पिकर। आप कोई भी कलर दे सकते हो इस कार्ड में। तो ये एक कार्ड आपका बन गया। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि इफ आई वांट आई कैन क्रिएट मल्टीपल कार्ड। इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो यू विल सी, तो यू हैव 3 कार्ड्स नाउ। इज इट क्लियर? एंड ये कार्ड को अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं लेफ्ट से राइट दिखाए, तो इसके लिए मुझे डीव का भी जो डीव का बाय डिफॉल्ट क्या है, जो कार्ड जो मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, तो बाय डिफॉल्ट है ब्लॉक लेवल। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा। तो क्या होगा ना, एवरीथिंग इज गोइंग टू डिस्प्ले। ओके, जस्ट अ मिनट। इसका सेंटर किया ना, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स। देखते हैं क्या होता है। हाँ,
तो लेकिन ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्यों आ गया? ओके ओके, जस्ट मिनट, यहाँ पे डिस्प्ले, जस्ट मिनट, यहाँ पे अगर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, यस, तो बॉडी में अगर डिस्प्ले फ्लेक्स में अप्लाई कर दूं, एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक लेफ्ट टू राइट, जो भी चीज रखोगे। तो यहाँ पे लास्ट जो पैराग्राफ है, फिलहाल के लिए आई डोंट नीड दिस, आई कैन अप्लाई द सीएसएस। तो आप अगर देखोगे, तो नाउ योर कार्ड्स आर लुकिंग ग्रेट। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. तो इस तरह का मैं अभी और 3 कार्ड अगर चाहूंगा, तो आई कैन कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। तो ये क्या, लेफ्ट से राइट इस तरह का आपको दिखाएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। वेयर इज द, यहाँ पे अगर मैक्स विड्थ दे देंगे, विड्थ तो 300 है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्स विड्थ कर रहा हूँ, मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ, सॉरी, देर इज मिनिमम विड्थ 300 होना चाहिए, ताकि आपका साइज कम नहीं हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, ये जो है मेरा डिस्प्ले फ्लेक्स किए बिना मैं अगर करूँगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कार्ड इस तरह का दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन करूँ, इसमें क्या होगा, आपका कार्ड सब इस तरह का दिखाएगा, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से, इनलाइन फ्लेक्स करते हैं, तो हाउ द कार्ड्स आर डिस्प्लेइंग, ऑल द कार्ड्स आर डिस्प्लेइंग लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं फ्लोट लेफ्ट, मतलब फ्लो लेफ्ट से राइट वो फ्लोट होगा। अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। हाँ, मैं मुझे जानता, सिंस यू आर ऑल फर्स्ट टाइम, तो ये डायनेमिकल स्टाइल देने में प्रॉब्लम होगा, बट यू शुड ट्राई टू एक्सपीरियंस कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, व्हाट हाउ आई एम प्रोवाइडिंग डिफरेंट स्टाइल टू इट, ओके। तो ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी आप लोग समझ में आया कि हाँ, सीएसएस ऐसे ही अप्लाई होता है, हम लोग ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं स्मॉल करूं, तो आप देख सकते हो रेस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। तो कोई भी साइट को आप रेस्पॉन्सिव कैसे करोगे, तो यहाँ पे एक सिंपल सा चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेट मी हाइड इट। तो मैं इसको क्रोम में खोलता हूँ, तो सो दैट, तो क्रोम में खोलोगे तो ऐसे दिखाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई, तो डेवलपर टूल्स को जाओ, जब आप यू विल गो टू द डेवलपर टूल्स, और वहाँ पे क्या होगा ना, आपको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक है टोगल डिवाइस टूल बार, इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि रेस्पॉन्सिवनेस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आईफोन एसई में अगर ये पेज को मैं देखूं, कैसे दिखेगा, ऐसे दिख रहा है। अगर मैं इसको एस में देखूं तो कैसे दिखेगा, देखो ये प्रॉपर लेआउट दिखा रहा है क्या मोबाइल में? हेलो? ठीक नहीं दिखा रहा है ना? यहाँ पे अगर मैं आईपैड में देखूं, लेट मी डिस्प्ले इट
हियर। सो जब मेरा साइज मोबाइल का हो जाए, विंडो का साइज मोबाइल हो जाए, ऑल द कैट शुड डिस्प्ले वन आफ्टर अनदर, नीचे नीचे दिखाना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन यहाँ पे रेस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है, दिस बिकॉज वट वट एवर पेजेस आई हैव डिजाइंड हियर, इट इज नॉट रेस्पॉन्सिव। तो what I need to do, I need to make it responsive. Are you getting my point? यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसको अगर स्क्रीन बड़ा करूं तो मेरा कार्ड कैसे दिखा रहा है, स्क्रीन छोटा करूं तो मेरा कार्ड कैसे दिखा रहा है। आप यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हो। तो रेस्पॉन्सिवनेस मतलब हाउ योर डिजाइन विल डिस्प्ले इन डिफरेंट डिवाइस साइज। डिस्प्ले मोबाइल में कैसे दिखाएं, टैब में कैसे मेरा लेआउट होना चाहिए, और लैपटॉप में कैसे होना चाहिए, डेस्कटॉप में कैसे होना चाहिए, प्रोजेक्टर में कैसे होना चाहिए। दिस काइंड ऑफ स्टाइल इफ यू नीड टू अप्लाई टू योर पेज, एंड दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिवनेस। तो रेस्पॉन्सिवनेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं ना, वी कैन यूज मीडिया क्वेरी। इज इट क्लियर? सो आप मीडिया क्वेरी यूज करके उसको रेस्पॉन्सिव कर सकते हो। तो मीडिया क्वेरी क्या है ना, आप यहाँ पे मीडिया क्वेरी अगर लिखोगे सीएसएस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन मीडिया क्वेरी। ये ट्यूटोरियल आप पढ़ के कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा चीज दिखा रहा हूँ कि हाउ वी विल अप्लाई दिस। जस्ट ए मिनट। हेलो, हेलो, हेलो। हम्म, थोड़ी बार जाओ। Yes, sir. क्लास सारी को कॉल कर। हम्म। तो देखो अभी, एवरीबॉडी जस्ट लुक एट हियर। तो मीडिया क्वेरी कैसे अप्लाई करते हैं हम? तो यहाँ पे इसी में भी मैं मीडिया क्वेरी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो आई कैन अप्लाई द मीडिया क्वेरी लाइक द वे, देर इज @MEDIA मीडिया। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन से डिवाइस के लिए, जब मेरा मैक्सिमम विड्थ मान लो कि मैं विड्थ 600 पिक्सल पे दे रहा हूँ, इसके अंदर फिर से मेरा कार्ड का विड्थ कितना होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा कि कार्ड मेरा विड्थ मान लो कि दे देंगे 90%, और 100% भी दे सकते हैं, थोड़ा गैप मुझे चाहिए तो 90%। फिर मेरा जो बटन है, बटन का विड्थ कितना होना चाहिए, तो आई कैन प्रोवाइड 100%। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग वंस यू अप्लाई द मीडिया क्वेरी। तो इसको फिर से देखते हैं हम यहाँ पे, इसको फिर से Ctrl+Shift+I। ओके, इसके ऊपर मैं क्लिक किया, फिर इसको थोड़ा रेस्पॉन्सिव बनाते हैं हम। तो देखो यहाँ पे देखो, जब आपका 600 मैक्सिमम विड्थ 600, ओके, तो उससे 600 से नीचे अगर जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग धीरे 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 इसको क्लोज कर रहे हैं। अब तक वही सेम लेआउट में दिखा रहा है। जब वो 600 होगा, उसका वेट थोड़ा कम होना चाहिए। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? 100% करो, फिर इसको करते हैं 550। मैक्सिमम विड्थ मैंने लिया ना, उसका लीफ का साइज, जो कार्ड का है ना, साइज शुड डिक्रीज। हाँ, 550 में इसका कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, आप देख सकते हो बटन का भी, देखो कैसे अफेक्ट हो रहा है। नाउ इट इज हैपनिंग, नाउ यू कैन सी। तो ये अभी बटन आपका 100% नहीं हो रहा है। तो आप देखो, जब मैं यहाँ पे 550 लिखूंगा, तो जस्ट हाँ 550 एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हो बटन जो है ना 100% वेट कवर कर रहा है। और इसका भी जो
div का ना width थोड़ा कम हो रहा है, ये सर नो? हेलो? यस सर। ओके। और Yes, sir. यहाँ पे क्या करूंगा, तो जब 600 के नीचे चला जाएगा आपका जो बॉडी है ना, वहां पे डिस्प्ले को मैं ब्लॉक कर दूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक। तो देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे ऐसे दिखा है, जस्ट ट्राई टू एक्सपीरियंस दिस वन व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये ऐसे दिखा रहा है, तो धीरे धीरे मैं इसको कमा रहा हूँ। तो कम कैसे करेंगे, ऐसे करते हैं। तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 600 से कम अगर जाएगा तो अप टू 600 इट विल डिस्प्ले जस्ट लाइक दिस। उससे नीचे अगर लेंगे, तो 600 से कम लेंगे तो देखो, तो सब कुछ नीचे, मतलब वन आफ्टर वन आ गया कि नहीं। 600 से ऊपर करूंगा तो सब एक लाइन में दिखा रहे हैं, 600 से कम कर किया तो सब कुछ दिखा रहा है। 90% विड्थ हो गया इसका, मतलब पूरा कार्ड कवर किया तुम्हारा स्क्रीन को। फिर उसका बटन भी चेंज हो रहा है, एंड ऑल द कार्ड्स आर डिस्प्लेइंग वन आफ्टर अनदर। और 600 से ऊपर में ले रहा हूँ तो सब कुछ दिखा रहा है, क्या बटन का अपना ओरिजिनल स्टाइल है। और ये जो डीफ्स दिखा रहा है ना, एक लाइन में दिखा रहा है। अप टू दिस क्लियर? हेलो? Yes. Yes, yes, sir. So this is called responsiveness. Responsiveness क्या है ना, यू कैन प्रोवाइड द मीडिया क्वेरी। सीएसएस में एक कॉन्सेप्ट है मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी में यहाँ पे स्क्रीन का साइज आप देना होगा। तो मैक्सिमम विड्थ का मतलब कितना है तुम्हारा, 600। जो स्क्रीन साइज है विड्थ 600 से कम अगर होगा तो आपका कौन सा स्टाइल अप्लाई होना चाहिए, दैट स्टाइल यू नीड टू प्रोवाइड हियर। सो आई होप नाउ एवरीबडी क्लियर कि ये कैसे सीएसएस अप्लाई करते हैं। ये सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल विच आई हैव यूज्ड हियर। ओके। हेलो? Yes, sir. हम्म। तो आप लोग यहाँ पे भी एक चीज अप्लाई कर सकते हो। मैं भी और चाहूंगा कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन इफेक्ट दें जब मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इसमें। तो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द ट्रांजिशन इफेक्ट। कैसे? जस्ट कार्ड, कार्ड, लेट मी राइट ओवर। फिर यहाँ पे देर इज ट्रांसफॉर्म, मतलब 2D ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं। तो लेट मी राइट स्केल, मतलब मैं थोड़ा डिफ को बढ़ाऊंगा, एंड ट्रांजिशन का स्पीड कितना होगा मेरा, लेट 0.3 सेकेंड। तो देखो अभी थोड़ा कुछ स्टाइल यहाँ पे अप्लाई होगा इसमें, आप देख सकते हो। इसको मैं अभी अभी क्या किया ना, ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई किया। जब उसके ऊपर माउस लूंगा तो क्या होगा, तो जस्ट आप एक look। देखो इसके ऊपर मैं जब माउस ले रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है कि नहीं, ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं? हेलो? ये थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। इसके ऊपर जब मैं फोकस करूंगा, होवर मतलब माउस ओवर, जब आप माउस उसके ऊपर लोगे तो हाउ इट्स नेचर इज। देखो मैं यहाँ पे जिसके ऊपर माउस ले रहा हूँ, ये स्केल हो रहा है। स्केल कितना हो रहा है ना, अगर मैं 2.0 लिखूंगा तो क्या होगा देखो, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वाह। हेलो? यस सर। एंड Yes, sir. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन इफेक्ट। तो ट्रांजिशन इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 लिख रहा हूँ। यहाँ पे कितना स्पीड में होगा, यहाँ पे देखो थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। तो आई कैन अप्लाई, अगर मैं क्विक चाह रहा हूँ तो यहाँ आई कैन इंक्रीज समथिंग। तो देखो, तो इट इज द ट्रांजिशन इफेक्ट यू कैन ऑल्सो अप्लाई। ये 2D ट्रांजिशन मैंने अप्लाई किया, यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड 3D ट्रांजिशन इफेक्ट। तो सीएसएस बहुत सारा चीज है। तो ये हमारा तो प्रोजेक्ट सेशन है, इसमें इतना डेप्थ को जा नहीं सकते। लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ दिस ऑल आर वर्किंग। ठीक है? हेलो? Yes, sir. तो ये प्रोडक्ट कार्ड हम बनाए,
तो इस तरह का वी कैन ऑल्सो डू सो मेनी डिफरेंट स्टाइल्स। तो एक सैम्पल स्टाइल था। तो अभी जो सीएसएस का आप कहाँ से पढ़ोगे, कैसे सीखोगे डिटेल्स, तो यू कैन डू योर सेल्फ स्टडी। तो सिंपल सीएसएस ट्यूटोरियल अगर मारेंगे तो W3 स्कूल में यहाँ जाना है आपको। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, आप पढ़ सकते हो। सीएसएस को मैं दिखा रहा हूँ आपको, यू कैन सी दिस इज सीएसएस, दिस इज इंट्रोडक्शन, थ्योरी है ये इधर। जो मैं मार्जिन पैडिंग सब दे रहा था, तो यहाँ पे क्या है ना, आपका मार्जिन टॉप का मतलब क्या है, राइट का मतलब क्या है, बटन का मतलब क्या है, लेफ्ट का मतलब क्या है, विथ एग्जाम्पल यू विल गेट ऑल द एग्जाम्पल। जब आप यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ करोगे, सो यू विल गेट द एग्जाम्पल्स विथ द आउटपुट। यहाँ पे मॉडिफाई करके रन करके आप फीचर देख सकते हो। तो एनीबडी हु आर टेकिंग इंटरेस्ट टू लर्न दिस वन, so they can visit this tutorial and learn with the basics। सब CSS का प्रॉपर्टीज क्या है, जो भी चीज मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, एवरीथिंग इज देयर। तो आप देखोगे बॉर्डर, बॉर्डर का जो मैं यूज किया, होवर के बारे में जो यूज किया, जितना सिलेक्टर्स में यूज किया, एवरीथिंग इज देयर। यू कैन लर्न डिटेल्स अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी कराया गया है। तो ये यू कैन सी CSS एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यू कैन डिजाइन वेबसाइट, ओके, लाइक द थिंग्स। लेट मी show you some example। For example, there is let's see, नो ये नहीं है, एक्सरसाइजेस होगा, हाँ। इस एक्सरसाइजेस में कुछ वन बाय वन यू कैन गो एंड सी। तो बॉक्स मॉडल का काम क्या है, आउटलाइन का काम क्या है, सबके लिए एक्सरसाइजेस यहाँ पे दिया गया है। यू कैन क्लिक ऑन एनी वन एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस इज गोइंग ऑन। इफ यू somebody will ask you to design this kind of things, then you can design from here। anyway, तो क्योंकि ना ये यहाँ पे तो पूरा डिटेल्स में कवर कर नहीं सकता ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट, बट मैं आपको आइडिया दे दिया, आप यहाँ से जाके पढ़ोगे। ठीक है, अ, तो अप टू दिस एनी क्वेश्चन? हेलो, नो सर। ओके। तो हम नेक्स्ट जो पार्ट को मूव करते हैं, तो ये सीएसएस का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका। तो नेक्स्ट पार्ट को जो मैं मूव करूंगा, तो दैट विल बी योर बूटस्ट्रैप। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स, HTML CSS के बारे में हम सीखे। अभी बूटस्ट्रैप के बारे में सीखेंगे, बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप कैसे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप इज अ लाइब्रेरी, UI library. It is designed by taking HTML, CSS and JavaScript and jQuery। इन चारों को लेके क्या हुआ है ना, आपको लाइब्रेरी बनाए दिया गया है। उस लाइब्रेरी को आप क्या करोगे, आपका प्रोजेक्ट में, आपका फाइल में अवेलेबल करोगे। फिर उसी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा प्री डिफाइंड क्लासेस प्रोवाइड, CSS क्लासेस प्रोवाइड किया गया है। उसका जो स्टाइल है, ऑलरेडी उन लोगों ने CSS लिख के आपको प्रोवाइड किए हैं। सिंपल आपको क्या करना है, वो क्लास को यूज करना है। तो दिस लाइब्रेरी provides you many predefined CSS classes। Okay, we need to use, we need to know those classes and use them to design our web page। Everybody clear? तो हम लोग ये सीखेंगे। तो टू यूज दिस लाइब्रेरी, टू यूज दिस लाइब्रेरी, you have to
avail it in your project. You have to avail it in your project. So how can I can avail it? Now we can get this library. First way is that way one, using CDN link, using CDN link. सेकंड वे क्या है ना, डाउनलोड द library and place all necessary CSS file and JavaScript file in your project. Up to this clear, everybody? Hello. Yes, sir. So now what I am going to Yes. do, I am going to teach you about the Bootstrap. This is very beautiful and very simple. Let's see how we are going to use Bootstrap. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, bootstrap हाइपन डेमो डॉट HTML एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ. तो पहला जो तरीका है, हम लोग यूज करेंगे CDN लिंक फॉर अवेलिंग द बूटस्ट्रैप. यहाँ पे मैं HTML लिखा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल, bootstrap example. So now let's avail the bootstrap using CSS. तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखा कि add bootstrap library here. So how can you add? Now first of all, you just visit the website bootstrap. तो यहाँ पे bootstrap मैं visit कर रहा हूँ. तो you can see there is a website that's name is bootstrap.com. So this is the bootstrap.com site where you will get the detailed information about the bootstrap. Everybody clear? Hello. Yes, sir. Sir. We will write, oh, this is the website. Now here you just go to the docs and here you go to the download. And once you go to the download, there you are getting so many things, source files. You can download here for availing it locally, and it is CDN link. So here I just copied this link and pasted into my page where I need. Simple, nothing need to do here. बस आप ऐसे डाउनलोड करो, इसको यूज करो. तो यहाँ पे CDN लिंक आपको मिल गया. अभी अब हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं बूटस्ट्रैप का स्टाइल अप्लाई हो रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे मैं एक div ले रहा हूँ, ठीक है. एंड आई एम ट्राइंग टू अप्लाई बूटस्ट्रैप क्लास. तो बूटस्ट्रैप बहुत सारा क्लास दिया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी का कलर है ना, कुछ चेंज हो जाए. तो इसको मैं थोड़ा रन कर रहा हूँ. फिलहाल के लिए आप देखो कि कुछ भी नहीं है इस डिव के अंदर. लेट मी राइट वन H1 वेलकम टू बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल. ओके. तो इसके अंदर मैं अभी क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसको जो, just a minute. हाँ. तो यहाँ पे जो लिखा गया है उसको मुझे सेंटर को लाना है, इसका बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है. तो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड्स यू 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कलर. तो कैसे ना, हम लिखेंगे यहाँ पे देखो बीजी, क्लास का नाम मैं सिंपल लिखूंगा. यहाँ पे देखो बीजी प्राइमरी अगर मैं लिखूं, तो आपका क्या कलर चेंज हो रहा है आप देख सकते हो. कुछ कलर चेंज हो रहा है क्या डिव का. अगर मैं बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना चाहूंगा, सिंपल बॉडी में ये बिजी प्राइमरी अप्लाई करूँ. यहाँ पे मैं कुछ CSS प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूँ. बूटस्ट्रैप जो है ना, वो आपको पूरा CSS का प्रॉपर्टीज लिख के ये क्लास को प्रोवाइड किया है. एंड सिंपल यू नीड टू प्रोवाइड यूज दिस क्लास. तो एक बार आप क्लास यूज करोगे तो आपका बॉडी का बैकग्राउंड हो गया. तो क्या क्या कलर है ना, प्राइमरी कलर इज देयर SECONDARY. सेकेंडरी कलर इज देयर, तो ये कलर हो गया. फिर आपका सक्सेस, तो ये CSS जो प्री डिफाइंड क्लासेस आपको प्रोवाइड किया गया है, आप उसी के बेसिस से
उन लोगों ने कलर भी चूज कर लिए आपके लिए, जो कि आपको इट विल लुक वेरी कूल टू आवर आई, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो रिसर्च करके उन लोगों ने ये कलर 8 कलर आपको चूज किए, जो कि ज्यादातर वेबसाइट में यूज होता है। तो क्या क्या कलर मैंने यहाँ पे लिस्ट किया, तो आप देख सकते हो। बूटस्ट्रैप कलर, बूटस्ट्रैप कलर, एक तो क्या मैंने यूज किया, प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी, थर्ड में सक्सेस, फोर्थ में देर इज इन्फो, फिफ्थ में WARNING वार्निंग, सिक्स में DANGER डेंजर, एंड एक लाइट है, LIGST वाइट के लिए, एंड डार्क के लिए डार्क। ओके, तो नाउ यू कैन सी, तो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स, दिस इज सेवन, एंड दिस इज 8। तो 8 टाइप का कलर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप यहाँ पे सक्सेस मैंने टेस्ट कर लिया, तो लेट्स राइट इन्फो। तो इसमें क्या कलर चेंज होता है, आप देखो यहाँ पे थोड़ा लाइट ब्लू हो गया। फिर मैं अगर चेंज करूंगा वार्निंग, WARNING वार्निंग, आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड वार्निंग मतलब ऑरेंज कलर जैसा हो गया। फिर DANGER डेंजर अगर लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका रेड कलर हो जाएगा। फिर आप अगर डार्क लिखोगे, सो इट विल बिकम ब्लैक, तो ब्लैक कलर हो गया। फिर आप अगर लिखोगे LIGST लाइट, इट विल बिकम व्हाइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? Yes, sir. So this is the Yes, sir. 8 color we were going to use to wherever. So now this is background. For background, the class name is BG light, BG or whatever BG you can give. ठीक है? तो मैं अभी यहाँ पे इन्फो दे रहा हूँ, तो बैकग्राउंड कलर हो गया। फिर इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना, इसको मैं रेड कलर देना चाहूंगा, तो आई कैन अप्लाई सिंपल क्लास, क्या ना, टेक्स्ट। मान लो कि टेक्स्ट का कलर मैं दे रहा हूँ DANGER डेंजर। तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा उसका, ये कलर चेंज हो जाएगा, डेंजर हुआ कि नहीं? अगर डेंजर की जगह मैं और कुछ दूंगा, तो उसी हिसाब से वो कलर चेंज हो जाएगा। अप टू दिस क्लियर? फिर मुझे क्या करना है, उसी को सेंटर को लेना है। तो इसके लिए भी बूटस्ट्रैप आपको एक क्लास प्रोवाइड किया है, उसका CSS उसके अंदर लिखा हुआ है। सिंपल आप लिखोगे टेक्स्ट सेंटर, CENTER सेंटर। जब मैं टेक्स्ट सेंटर लिखूंगा, तो ये आ जाएगा सेंटर को। आया कि नहीं? हेलो? Yes, sir. सो बूटस्ट्रैप इज प्रोवाइडिंग यू दिस काइंड ऑफ टास्क। ओके, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए। तो सिमिलरली हम लोग बहुत सारा चीज बूटस्ट्रैप के थ्रू से यूज कर सकते हैं। हाउ कैन यू रेफर द बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी? तो बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी हम रेफर करने के लिए, तो उसका साइट को जा रहे हैं, तो वहां पे आप देख सकते हो। तो कलर्स, जो कलर वाला मैंने बताया, यहाँ पे क्लिक करने से आपको मिल जाएगा कि क्या क्या कलर बूटस्ट्रैप सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो ये सब। ठीक है, वेरिएबल्स वगैरह दिया हुआ है। दीज आर द डिफरेंट कलर्स, कैन यू सी? हेलो? Yes, sir. ठीक है, तो ये एक BS वार्निंग वाला कलर है। आप ऐसे कलर भी अप्लाई कर सकते हो। इफ यू नीड दिस काइंड ऑफ स्टाइल, देन क्या करोगे, आप पूरा इसको उठाओ यहाँ से, ये जो है, तो हमारा पेज में अगर उसको डालेंगे, तो क्या होगा देखते हैं। तो ये समथिंग हैज बीन चेंज जस्ट लाइक दी, मेरा डिव ऐसे चेंज हो गया। तो लेकिन इसमें कुछ कलर अप्लाई नहीं हुआ, बिकॉज आई नीड व्हाट दिस जावास्क्रिप्ट हियर। ये लिंक को यहाँ पे देते हैं, तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, देखते हैं। ये कलर तो अप्लाई होना चाहिए, व्हाई दिस इज नॉट? okay, now you can see these are the colors already I have used: primary, success, danger, warning, info, light and dark. Hmm. Okay, these are the different colors you can apply.
हम्म। तो ये सिंपल चीज जितना आपको जरूरी है उतना ही यूज करोगे, तो ये पूरा यूज जानने का कुछ जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। हम्म। स्टेबिलिटी यहाँ पे टेक्स्ट प्राइमरी एम्फासिस, प्राइमरी सबटल बॉर्डर, और अच्छा उसका बैकग्राउंड प्राइमरी सबटल था हम लिखे हैं, तो वाई इट इज नॉट वर्किंग, इट शुड वर्क समथिंग, लाइब्रेरी रेफरेंस कुछ मिस हुआ है। प्राइमरी बीजी सबटल, व्हाट आई हैव रिटन हियर, जस्ट अ मिनट, बीजी सबटल नहीं, ठीक है, ये काम करना चाहिए बट व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, सी दैट। जी प्राइमरी तो काम कर रहा है, सबटल काम करना चाहिए, सब टीएलई, नो इट इज नॉट वर्किंग। तो देखते हैं क्यों नहीं काम करेगा, वो बाद में देखेंगे। तो नाउ लेट मी डिजाइन द पेज यूजिंग, हाँ बूटस्ट्रैप आपको क्या कर रहा है ना, लेआउटिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो आप अपना प्रोजेक्ट का लेआउट बना सकते हो पेज का। फिर आप क्या कर, ये इट इज प्रोवाइडिंग यू व्हाट, द फॉर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, तो फॉर्म्स आप क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो है ना, इट इज प्रोवाइडिंग यू लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, तो हम लोग वही कार्ड जो बनाए वहाँ पे, तो बूटस्ट्रैप यूज करके भी हम कार्ड बना सकते हैं, वो यूजर वाला कार्ड। तो कैसे बनाओगे, इफ यू क्लिक ऑन दिस कार्ड, तो बूटस्ट्रैप प्रोवाइडिंग यू, कैन यू सी दिस, हेलो। Yes, sir. तो यहाँ पे सिंपल सा चीज है कि मुझे यहाँ पे सीएसएस लिखना नहीं है, सिंपल ये जो कोड है ना, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, उठाऊंगा, तो इसको लेके देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट, और एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का क्लास लिखूंगा, लेट मी राइट रो, इसके अंदर वो जो कॉपी किया मैंने उसी कार्ड को पुट कर दूंगा। तो आप देखोगे मेरा पेज में अभी वो दिखाएगा, क्या दिखाएगा ना, ये कार्ड दिखा रहा है कि नहीं, हेलो। Yes, sir. तो ये कार्ड को मैं अभी डिजाइन करता हूँ, तो सिंपल सा क्या है ना, मैं सिंपल सा यूज करूंगा बूटस्ट्रैप कार्ड, दिस इज द प्री डिफाइंड कार्ड। इससे पहले जो मैं कर रहा था, मैं खुद का सीएसएस क्लास बना के उसमें प्रॉपर्टीज दे रहा था, लेकिन बूटस्ट्रैप वाले क्या किए हैं ना, वो लोग ने उसी क्लास करके उसमें सीएसएस प्रॉपर्टी अपने तरफ से दे दिए, हम लोगों को सिंपल ये कार्ड का क्लास प्रोवाइड कर दिए, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कार्ड, तो वो कार्ड का डिजाइन ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो आपको कार्ड ऐसे दिख रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एसआरसी में आपको अपना इमेज डाल सकते हो, तो लेट मी ऐड माय इमेज, यहाँ पे असेट, फिर इमेजेस, फिर यूजर टू, तो मैंने दिया। तो अभी देखते हैं हमारा स्टाइल पे क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली जो इमेज है ना, वो विड्थ हाइट में सेट किया हूँ कुछ यहाँ पे, नहीं वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इमेज को रेस्पॉन्सिव बना रहा है, इतना साइज होना चाहिए, तो इस अकॉर्डिंगली योर इमेज इज प्लेस्ड हियर इन द कार्ड, इज इट ऑल राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, sir. कार टाइटल में मैं लिख सकता हूँ समथिंग नेम, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, तो द नेम हैज बीन प्लेस्ड हियर। तो यहाँ पे आई कैन राइट सम पैराग्राफ। तो यहाँ पे जो बटन है ना, एंकर टैग को मैं क्या कर रहा था, बीटीएन करके सीएसएस में खुद का लिख रहा था, यहाँ पे बटन ऑटोमेटिकली, आप यहाँ पे बीटीएन लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली एंकर टैग को बटन में कन्वर्ट कर देगा, उसका जो, हाँ ये बटन हो गया। लेकिन आपका बटन का स्टाइल आपको देना चाहोगे, तो आप यहाँ पे बटन में मान लो कि सक्सेस दे रहा हूँ, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द सक्सेस, SUCC, सक्सेस, तो मतलब ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी सपोज मैं वार्निंग
वार्निंग लिखा तो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, इसका तो यहाँ पे आउटलाइन डेंजर इसे होवर इस तरह का हो जाएगा। तो ये जो क्लास है ना, आप लोग इसका सीएसएस नहीं लिख रहे हो, दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द सीएसएस ऑफ दिस क्लास, यू जस्ट नीड टू यूज दिस क्लास वेर एवर यू रिक्वायर्ड। तो अभी मेरा ये हो गया, तो ठीक है। तो div के अंदर जो भी होगा तो सब टेक्स्ट को मैं से सेंटर में रखना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट हाइपन CENTER सेंटर। तो क्या होगा, तो जो भी है आपका सेंटर में आ जाएगा। इज इट ऑल राइट? तो इस तरह का ये का कार्ड हो गया। इफ यू नीड मल्टीपल कार्ड, हम लोग ये कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉपी किया, दो, तीन, चार, पांच। तो आप अभी देख सकते हो इसका कार्ड का कैसे डिजाइन हो रहा है। इज इट ऑल राइट? हेलो? Yes. ओके। Yes, यहाँ पे जो sir. इमेज है, इमेज जो है मार्जिन कार्ड का इमेज टॉप अप ले लिए। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो इमेज 100% कवर करे मार्जिन और पैडिंग। तो उसके लिए मैं एक्सटर्नल सीएसएस लिख सकता हूँ। लेकिन ये जो कार्ड है ना, कार्ड के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए। तो मैं उसको देने के लिए यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, मार्जिन 1 से लेके 5 तक मैं दे सकता हूँ। मार्जिन 1 मतलब चारों तरफ से गैप हो जाएगा, 1 1 गैप हो जाएगा। तो देखते हैं क्या गैप हो रहा है। तो सॉरी, इसमें नहीं। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, सो दैट एक कार्ड को पहले हम ठीक करते हैं, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट कराते हैं। ठीक है, ये जो मेरा कार्ड है उसका यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन 1 एंड पैडिंग 1। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। एक इमेज हो गया, उसका मार्जिन 1 दिया। और ये जो पूरा का पूरा चीज है ना, पूरा जो ये ऊपर वाला डिव है और यहाँ पे कार्ड है, सबको मुझे क्या करना है ना, एक कंटेनर के अंदर रखना है। तो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड यू वन कंटेनर। तो लेट मी राइट ए डिव, इसमें हम क्लास देंगे, क्लास का नाम लिखेंगे container। तो कंटेनर क्या करेगा ना, वो उसका सीएसएस उन लोगों ने लिख के दिए हैं कि इसको अगर आप प्लेस करोगे, आपका क्या होगा ना, मार्जिन और पैडिंग थोड़ा लेफ्ट से और राइट से मार्जिन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? Yes, sir. तो आपका अभी ये कार्ड ऐसे दिखाया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा कार्ड एक तो यहाँ पे बन गया इस तरह का। आई कैन कॉपी दिस कार्ड, पेस्ट इट हियर। दो कार्ड, तीन कार्ड, चार कार्ड, पांच कार्ड, छह कार्ड, 6 बार मैंने पेस्ट किया। तो अभी हम देख सकते हैं ऑल द कार्ड्स आर डिस्प्लेइंग विथ लिटिल बिट मार्जिन एंड पैडिंग अराउंड देम। एंड तो यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है कि नहीं? हेलो? Yes, sir. तो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट। आप अगर ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट विजिट कर रहे हो, अमेजन विजिट कर रहे हो, वहां पे आप इस तरह का प्रोडक्ट कार्ड देख रहे हो कि नहीं? तो वहां पे जब क्लिक करोगे, आर्ट टू कार्ट, नहीं तो चेकआउट, ऐसे ऑप्शन है, और व्यू डिटेल्स। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देके जा सकते हैं। तो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में एक केस स्टडी, कंप्लीटली वेबसाइट कैसे बूटस्ट्रैप यूज करके डेवलप करते हैं वो दिखाऊंगा। जावास्क्रिप्ट के थ्रू से डाटा कैसे बाइंड करेंगे तो वो दिखाऊंगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर। अप टू दिस क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये है बूटस्ट्रैप का यूसेज। तो बूटस्ट्रैप का जो यूसेज नेक्स्ट है क्या है, तो एक सिंपल सा लास्ट सेशन में आज के लिए कर रहा हूँ, कल नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो एक मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोफाइल पेज बना रहा हूँ, प्रोफाइल हाइपन पेज बूट STRAP बूटस्ट्रैप .html करके मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ऐसे लिए, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसमें बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी मुझे ऐड करना है। फिलहाल के लिए हम CDN लिंक ही सीखते हैं। तो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में मैं ये लाइब्रेरी ऐड किया था, तो इसको कॉपी करो। फिर
आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। अदरवाइज सीरियल लिंक कैसे हम कॉपी करके लाएंगे, तो वो चीज़ तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका लास्ट में जो ना जावास्क्रिप्ट बॉडी टैग एंड होने से पहले हम उसको प्लेस करेंगे। क्यों प्लेस करेंगे उसका रीज़न हम बाद में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको प्लेस करते हैं। तो ये दोनों लाइब्रेरी मुझे मिल गया। फिर मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का मतलब अभी पेज बनाना चाह रहा हूँ। तो नॉर्मली बूटस्ट्रैप आप जब यूज करोगे, एक तो मेन डिव लिखोगे, इसमें क्लास दे दोगे कंटेनर। तो क्या होगा ना, उसके अंदर जो भी रखेंगे हम, वो क्या होगा, लेफ्ट से राइट से थोड़ा मार्जिन रख के आपका डाटा को रखेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। Yes, Yes, sir. sir. इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे div यूज करूंगा। तो बूटस्ट्रैप प्रोवाइडिंग यू रो एंड कॉलम div। तो वो एक क्या करता है ना, पेज को 12 कॉलम में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं ग्रिड लेआउट। इट डिवाइड्स द पेज इनटू 12 कॉलम और 12 ग्रिड्स हम कर सकते हैं। तो और यहाँ पे मैं लिखा रो, मतलब एक div के बाद दूसरा div रहेगा। रो रो के अंदर हम लिख सकते हैं div, इसका क्लास हम दे सकते हैं कॉलम। कॉलम कितना बाय डिफॉल्ट 12 है। ठीक है, ये 100% विड्थ कवर करेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें इस रो में पहला जो मेरा है मेनू में रखना चाहता हूँ। तो नॉर्मली हम मेनू कैसे डिफाइन करते हैं, एचटीएमएल में नाव कीवर्ड यूज करके। ठीक है, अप टू दिस क्लियर? हेलो। तो यहाँ पे देखते हैं बूटस्ट्रैप आपको कुछ टूल प्रोवाइड किया है क्या मेनू क्रिएट करने के लिए। हम बूटस्ट्रैप को लाइब्रेरी जाके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी को जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, वेयर इज नाव बार देख रहे हो? हेलो। Yes, sir. तो ये जो Yes, Yes. sir. नाविगेशन बार है, यहाँ पे आप इस तरह का नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हो। तो यू कैन क्रिएट द काइंड ऑफ नेविगेशन बार व्हाट यू नीड। तो ये है आपका। तो इसका जो कोड है ना, मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे सिंपल से नाव प्लेस कर दूंगा। ठीक है। तो अभी मेरा प्रोजेक्ट को देखते हैं तो कैसे वो, तो यहाँ पे देखा? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो नेविगेशन हो गया, इसी तरह हिसाब से मैं मेरा मेनू चेंज करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नेविगेशन दिखा रहा है ना, बैकग्राउंड बिजी बॉडी, जो बैकग्राउंड टर्सियरी दिखा रहा है, तो ये एक इस तरह का कलर आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा चाह रहा हूँ, तो उसको डार्क कर देता हूँ, बिजी डार्क। डार्क कलर हो गया। फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, सब टेक्स्ट को मैं लाइट कर दूंगा, जीएसटी लाइट। अच्छा, ये लाइट नहीं हुआ। हम्म, देखते हैं, एक मिनट। हम्म, इसको हटा के देखते हैं। ये आ गया मेरा नेविगेशन बार, उसका बैकग्राउंड वीजी, लेट्स राइट इन्फो। इन्फो ये हो गया। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ठीक है ये। हम चेंज कर सकते हैं, हम वी कैन ऑल्सो अप्लाई आवर कस्टम सीएसएस। एंड जो नेविगेशन है ना, ऊपर पूरा गैप नहीं है, मैं थोड़ा गैप देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, तो कंटेनर में मैं लिखूंगा कि मार्जिन जो टॉप है ना, मार्जिन टॉप के लिए एम्प्टी लिखेंगे, मार्जिन टॉप मैं 1 दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो थोड़ा गैप हुआ कि नहीं? हेलो। Yes, Yes, sir. sir. तो ये हो गया मेरा मेनू। तो मेनू में अभी मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोफाइल लोगो। You can, if you have any logo, you can place the logo here, or anything you can write here। ठीक है। फिर यहाँ पे होम फीचर प्राइस ऐसा है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे जाके। वेयर इज दैट?
एंकर टैग सब में यूज हुआ है। यहाँ पे आप लिंक से दे सकते हो, होम इज देयर, देन लेट मी राइट अबाउट इज देयर, लेट मी राइट माई स्किल इज देयर। ओके, देन यहाँ पे हम और एक ये जो डिजाबल फील्ड है ना उसको हटा देते हैं इसमें। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट, ओके, फिर मैं मेरा ब्लॉग में यहाँ पे मेरा सीवी मतलब री रेज्यूमे पेज दिखा सकता हूँ। तो अभी देखते हैं, तो हमारा ये हो गया। हेलो। यस सर। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कराजल मतलब इमेज मूव कराऊंगा। तो जस्ट आफ्टर नेविगेशन, तो ये रो आपका खत्म हुआ, फिर और एक रो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट करूँ तो मेरा रो यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके बाद व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अ क्लास डिफ, फिर यहाँ पे लिखूंगा क्लास रो, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूंगा div क्लास कॉल हाइपन 12, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक carousel प्लेस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय carousel? तो आप देख सकते हो यहाँ पे carousel। तो carousel का मतलब स्लाइडर। जनरली वी आर visiting any site, the some images are rolling, some text is rolling, can you see this? Hello. यस सर। Yes, sir. So this kind of slider you can provide. Okay. तो let me use this basic slider। उसके बाद हम दूसरा स्लाइडर यूज कर सकते हैं। ये स्लाइडर को मैं सिंपल यहाँ से कॉपी किया, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्लाइडर, यहाँ पे कौन सा क्लास यूज हो रहा है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप carousel स्लाइड एक क्लास यूज कर रहा है, वहाँ पे इनर यूज कर रहा है, वहाँ पे आइटम फिर एक्टिव यूज कर रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज लिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको लेके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। फिर फिलहाल के लिए देखो व्हाट एग्जैक्टली योर पेज इज लुकिंग लाइक। तो यहाँ पे इमेज नहीं है, इसलिए इट इज नॉट एबल टू शो यू दिस थिंग। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम एक एक इमेज डालते हैं। तो लेट मी ऐड द इमेज assets, देन इमेज, यहाँ पे यूजर वन का इमेज है, यहाँ पे वही करो, लेट्स कॉपी। तो यहाँ पे यूजर टू था, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका यूजर थ्री था। तो तीनों इमेज है मेरे पास, मैं तीनों डाला यहाँ। तो देखते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग इन माय पेज, समथिंग इज गोइंग ऑन। हेलो। हेलो। Yes, sir. your image is displaying here, so if you click it, so you can able to move to the images. So this is called slide। Are you getting my point? एंड इसको बोलते हैं Yes, sir. carousel, इसको बोलते हैं carousel। तो नाउ द carousel हैज बीन अप्लाइड। ओके, यहाँ पे आपका लेफ्ट में गैप है, राइट में गैप है, उसको किल करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंटेनर के प्लेस में आप यूज कर सकते हो कंटेनर फ्लूइड, -FLUID फ्लूइड। तो जब आप लिखोगे कंटेनर फ्लूइड, क्या होगा ना, आपका पूरा का पूरा विड्थ कवर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे आपका जो हाइट है ना इसका, किसका, ये रो का, कौन सा रो का, सेकंड वाला carousel वाला रो का। उसके बाद हम अगर कुछ कंटेंट रखेंगे तो हो जाएगा। तो फिलहाल carousel मेरा ऐड हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मुझे देखो यहाँ पे बहुत सारा एलिमेंट्स है, मतलब आप लोग सीखोगे अगर, यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द कंपोनेंट। व्हाट इज एक्कोर्डिन? एक्कोर्डिन क्या है, हम अगर क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का कुछ आ रहा है। तो ये इसको बोलते हैं एक्कोर्डिन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। Yes, sir. So if you need to add this kind of things, then you can also add। For example, मैं मेरा div दिखाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पे मैं हम्म, हम्म, देखो यहाँ पे और क्या क्या है, buttons are there, card is there,
then drop down is there, modal is there, navbar is there, pagination, so many things are there. So we can design our page वन बाय वन. तो मैं आज क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दिया कि ये चीज़ हम बूटस्ट्रैप कैसे यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप में कैसे प्री डिफाइंड जो स्टाइल्स है, कंपोनेंट्स है, उसको इसी डॉक्यूमेंट को लर्न करके हम कैसे कैसे बूटस्ट्रैप बना सकते हैं. तो मैं कल क्या करता हूँ, आपको कंप्लीट से एक वेबसाइट मतलब बना के आपका ये मतलब खुद का एक आप पोर्टफोलियो बना सकते हो. पोर्टफोलियो बना के बूटस्ट्रैप अप्लाई करके कर सकते हो. और बूटस्ट्रैप को यूज करके हम बहुत सारा चीज कर सकते हैं. तो आप देखोगे यहाँ पे अगर जाओगे तो यस, यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, यू कैन प्रैक्टिस दिस एग्जाम्पल्स नाउ. यू गो देयर. सो कैन यू सी ऑल दीज थिंग्स एग्जाम्पल्स? हेलो. Yes, sir. सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है, ये एक एग्जाम्पल है एल्बम. सो आई विल आस्क टू यू, यू जस्ट गो देयर एंड सी. एंड ये एल्बम आप बना सकते हो. आप अपना इमेज डालोगे, इस तरह का आप बना सकते हो. फिर यहाँ पे है इस तरह का पेज भी, carousel आप बना सकते हो. तो दिस इज द carousel. तो इसको भी आप ऐसे बना सकते हो. तो बोलोगे सर इसका कोड हमको कैसे मिलेगा? तो सिंपल कंट्रोल यू टाइप करो, कंट्रोल यू, तो यू विल गेट ऑल द कोड्स फ्रॉम देयर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. तो फिलहाल के लिए आपको डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी इजी. एक बार सीख गए तो विद इन 2 days यू कैन डिजाइन योर ओन वेबसाइट विथ प्रॉपर क्लैरिटी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. तो कल हम एक पोर्टफोलियो साइट बनाएंगे, फिर और एक साइट, दो केस स्टडीज में आप लोग के लिए रख रहा हूँ. कल हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. मेरे साथ भी आप अगर हो सकता है तो 2 घंटा में बनाओगे. ठीक है. तो आज के लिए इतना. अगर किसी का क्वेश्चन है, आर यू ऑल एंजॉइंग टुडेज सेशन? इज इट इंफॉर्मेटिव? देखो मैं, Yes, sir. Yes. हाँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि ना हमारा ये प्रोजेक्ट सेशन है. डिटेल्स में जाएंगे तो ये पूरा कैसे बनाएंगे, इसका ईच एंड एवरी फीचर्स के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं. बट इट विल टेक टाइम. ओके. मिनिमम तो मतलब CSS सीखने के लिए 15 days का पूरा टाइम देना होगा. फिर बूटस्ट्रैप को अच्छे से पूरा सीखेंगे तो 1 week का टाइम लेंगे. बहुत सारा केस स्टडी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. बट यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, हम जो प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं, वहाँ पे ये चीज़ मैं यूज करूंगा. उसको कैसे यूज करूंगा, जब मैं समझाऊंगा आप लोग को समझ जाना चाहिए ये कॉन्सेप्ट को कैच करके. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो. तो ये जो है सबका सोर्स कोड जो है, मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा. यू विल गेट दिस लिंक, गिटहब का लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. तो सबका जो कोड है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का प्रीवियस सेशन का प्रोजेक्ट का, यू विल गेट द कोड फ्रॉम दिस साइट. तो प्लीज, यस वी कैन स्केल. समबडी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन. सो मैं कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ. आप वहाँ ये गिटहब से, मेरा गिटहब से आप डाउनलोड कर लेना है. ओके. तो कोड को डाउनलोड करके अपने तरफ से देखना, वीडियो को तो वॉच करना. और जो भी क्वेश्चन है यू कैन फ्रीली आस्क टू मी. मुझे मैसेज पर्सनली कर सकते हो. मेरा नंबर, आई होप एवरीबडी हैविंग माय नंबर. अगेन आई एम आल्सो गिविंग माय नंबर 94399141. दिस इज माय नंबर एंड माय alternate number is 72008937 72008936 बजे. ऑल्टरनेटिव नंबर थोड़ा मेरा याद नहीं है. मैं ये नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट. ठीक है. तो आज के लिए इतना रखने देते हैं, रहने देते हैं. तो थैंक यू ऑल फॉर शोइंग योर पेशेंस. ओके. चलो गुड नाइट. कल Thank you. 7 o'clock, 7:30 को स्टार्ट करते हैं. 7:30 से 8:30 दो केस स्टडी कराएंगे. फिर हम नेक्स्ट मंडे से नेक्स्ट जो सेशन होगा जावा से स्टार्ट करेंगे. चलो बाय टू ऑल. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.